نے ہم پر حج کو فرض کیا اور قرآن میں فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ تو آپ نے پچھلی گفتگو میں حج کے شرائط کے تعلق سے سماعت کیا کہ حج فرض ہونے کے لیے 8 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے حج کے فرائض کے تعلق سے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، اور حج کے فرائض کل 7 ہیں۔ حج کے فرائض کل 7 ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 احرام کا ہونا، اسی کو احرام باندھنا۔ نمبر 2 ہے وقوف عرفہ، 9ویں اور 10ویں ذی الحج کے آفتاب ڈھلنے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے پہلے کے درمیان کسی وقت میدان عرفات میں ٹھہرنا وقوف کہلاتا ہے۔ اور تیسری ہے طواف زیارت کے کم از کم 4 چکر، اسی کو طواف رکن، طواف حج اور طواف فرض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت 10ویں ذی الحجہ صبح صادق سے لے کر 12ویں ذی الحج تک ہے۔ نمبر 4 ہے نیت، اور نمبر 5 ہے ترتیب، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف، پھر طواف، اور نمبر 6 ہے ہر فرض کا اپنے وقت پر ادا کرنا، اور نمبر 7 ہے ہر فرض کا اپنے مقام و مکان پر ہونا، اپنے مقام اور مکان پر ہونا۔ یہ 7 فرائض ہیں، حج کے ہیں۔ اور حج کے ارکان جو ہیں، حج کے رکن 2 ہیں۔ نمبر 1 طواف زیارت اور نمبر 2 وقوف عرفہ، یہ 2 رکن ہیں، اور ان دونوں میں سے زیادہ اہم وقوف عرفہ ہے۔ پھر حج کے واجبات بھی ہیں۔ حج کے واجبات 6 ہیں، اور نمبر 1 وقوف مزدلفہ واجب ہے، نمبر 2 صفا مروہ کی سعی واجب ہے، نمبر 3 جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے، نمبر 4 حج قران و تمتع کرنے والے پر قربانی کرنا، نمبر 5 حلق، سر کے بال منڈوانا یا تقصیر، کچھ بال کاٹنا، نمبر 6 ہے آفاقی یعنی میقات سے باہر کے رہنے والے کو طواف و وداع کرنا۔ طواف وداع کو طواف صدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ سے واپسی پر کیا جاتا ہے، اور اہل مکہ اور اندرون میقات رہنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ بعض کتب میں واجبات حج کی تعداد 35 تک بیان کی گئی ہے۔ در حقیقت وہ حج کے واجبات نہیں بلکہ افعال حج کے واجبات ہیں۔ اچھا، اب حج کی سنتیں بھی ہیں، سنن بھی ہے۔ تو سنن حج کی جو کل سنتیں ہیں وہ بہت ہیں، تفصیل سے ذکر کرنا یہ گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی۔ یہاں چند ایک کو میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 طواف قدوم، یعنی میقات کے باہر سے آنے والے سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ حج افراد اور قران کرنے والے کے لیے سنت ہے، تمتع کرنے والے کے لیے نہیں۔ اور نمبر 2 ہے ابتدائی طواف حجر اسود سے ہونا۔ نمبر 3 سنت جو ہے وہ طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا۔ نمبر 4 سنت صفا مروہ کی سعی کے وقت سبز نشانوں کے درمیان دوڑنا۔ نمبر 5 ہے امام کا 7ویں ذی الحجہ کو مکہ میں، 9ویں کو عرفات میں اور 11ویں کو مینا میں خطبہ دینا، یہ سنت ہے۔ اور 8ویں سنت 8ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا، اور 9ویں ہے وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ 10ویں ہے سنت ہے عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا، اور 11ویں سنت ہے
अगले दिन तुलुए आफ्ताब से पहले मिना को रवाना हो जाना। 12वीं सुन्नत है 10 ज़िलहिज्जा और 11 के बाद की दोनों रातें मिना में गुजारना। और 13वीं है वादी महसब में उतरना, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, वगैरह। ये तमाम जो है हज की सुन्नतें हैं। अच्छा, यहाँ पर मुनासिब ये भी है कि हज के अक़साम को भी बयान कर दिया जाए कि हज की किस्में कितनी हैं। तो हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इफराद, सिर्फ हज का एहराम बांधकर हज पूरा अदा करना। और नंबर 2 है क़रान, हज और उम्रा का इकट्ठा एहराम बांधकर हज के बाद एहराम खोलना। नंबर 3 किस्म है तमत्ता, हज के महीनों में पहले उम्रा का एहराम बांधकर उम्रा करना और उम्रा के बाद एहराम खोल देना, मगर घर न जाना बल्कि इसी साल फिर हज का एहराम बांधकर हज करना। अब ये 3 किस्में हज की हैं और हनफियों के नजदीक सबसे अफजल हज क़रान है। ये तो 3 किस्में हुई और हज क़रान के बाद फिर तमत्ता, फिर अफराद है, इफराद। अच्छा, यहां पर हाजियों के लिए तलबिया भी है। तलबिया जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं और याद भी है कि पढ़ना कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया है। और यहाँ पर चूंकि हज के ताल्लुक से गुफ्तगू चल रही है तो फिर ये जिक्र करना भी मुनासिब होगा कि हज करने से हमें फायदा क्या मिलेगा और दुनिया या आखिरत में इसके फायदे क्या हैं। तो हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मस्जिद मिना में बैठा हुआ था कि एक अंसारी और एक सख्फी साहब हाजिर खिदमत हुए और सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुछ पूछने के लिए हाजिर हुए हैं, कुछ सवाल लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम क्या पूछने आए हो, और अगर चाहो तो मैं खामोश रहता हूं, तुम पूछो मैं जवाब दे दूंगा। पहले दोनों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दें। दोनों ने यानी अंसारी और सख्फी साहबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह आप ही इरशाद फरमा दें। फिर सख्फी ने अंसारी से कहा कि तुम सवाल करो। तो अंसारी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही खबर दें, या रसूलुल्लाह आप ही खबर दें। उस पर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये पूछने आए हो कि हम तुम्हारा अपने घर से बैत हराम काबा मुअज़्ज़मा के इरादे से निकलना कैसा है। जो तुम हज के इरादे से अपने घर से निकले हो अल्लाह के घर की जियारत के लिए, तो ये निकलना तुम्हारे लिए कैसा है और इस पर इसमें क्या सवाब है। तवाफ के बाद 2 रकअत पढ़ना कैसा है और उसका अज्र कितना है। सफा मरवा के माबैन तवाफ यानी सही कैसा है और उसमें किस कदर सवाब हासिल होता है। शाम तक अरफात में ठहरना कैसा है और उसके अज्र की क्या कैफियत है। जमरात की रमी कैसी है और कितना बड़ा अज्र है। तुम्हारा कुर्बानी करना और उसका सवाब क्या है। और तवाफ इजाफा या ये तवाफ फर्ज है, हज का रुकन है और दौरान हज मिना से मक्का आया करते हैं और फिर मिना को लौट जाते हैं, यानी एक लंबा सफर होता है। किस कदर सवाब का हामिल है। अंसारी ने अर्ज की, कसम है उस जात पाक की जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं यही सवाल लेकर आया था। सुभान अल्लाह। अंसारी साहबा के दिल में क्या था, उन्होंने जबान से नहीं अदा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में होने वाले जो सवालात थे उसको नबी ने बयान फरमाया और इसी को इल्मे गैब कहा जाता है। ऐसी मकाम के लिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सुनो जवाबात आका, जब तुम बैतुल्लाह का इरादा लेकर घर से निकलते हो और तुम्हारी नाका जो यानी ऊँटनी जो पांव जमीन पर रखती और उठाती है, हर एक के औज अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक नेकी लिखता है और तुम्हारा एक गुनाह मिटा देता है।
तुम्हारा तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना ऐसा है कि जैसा कि तुमने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से गुलाम आजाद किया। सफा मरवा की सही 70 गुलाम आजाद करने के बराबर है। और जब तुम शाम तक अरफात में वकूफ करते हो तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल जलाल फरमाता है। फिर तुम पर मलाइका के सामने फख्र करते हुए फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदे मेरे पास गुबार आलूद बालों के साथ दूर दराज के रास्ते से चलकर आए हैं, ये मेरी जन्नत के उम्मीदवार हैं। अगर तुम्हारी गुनाह ऐ हाजियों रेत के जर्रों, बारिश के कतरों, समंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो मैं जरूर बख्श दूंगा। अब ऐ बंदो जाओ, लौट जाओ, तुम बख्श दिए गए हो, और जिसकी तुमने सिफारिश की उसे भी माफ कर दिया गया। यही वजह है कि यही वजह कि हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब कोई हाजी हज से वापस आए तो उसके घर में दाखिल होने से पहले उससे